بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کا باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات و عبادات اس کے فردر آگے سے پارٹس ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دو ورڈ ہیں، ایک ایمانیات اور ایک عبادات، جیسے کہ اوپر ان کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے۔ الف حصہ جو ہے وہ ہے ایمانیات۔ ایمانیات میں دیکھتے ہیں کہ کتنے پارٹ ہیں۔ ایمانیت کا ایک پارٹ ہے عقیدہ توحید، اور پھر اگلا پارٹ ہے اس کا عقیدہ رسالت۔ ایمانیت کا اگلا پارٹ ہے عقیدہ رسالت، پھر اس کے بعد اگلا اس کا پارٹ ہے۔ اس کے بچوں اس کے 3 پارٹس ہیں۔ جیسے کہ ہم ایمان لاتے ہیں توحید پر، عقیدہ رسالت پر، اور پھر ملائکہ اور آسمانی کتب اور آخرت پر یقین۔ یہ اس کے 3 پارٹس ہیں۔ آج ہم کریں گے اس کا پہلا پارٹ، باب دوم کا پہلا پارٹ، ایمانیات کا پہلا حصہ عقیدہ توحید۔ تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، اس کو پڑھ کے ہمیں کون سی چیزوں سے آگاہی حاصل ہوگی۔ توحید کا ہم معنی جان سکیں گے، اور مفہوم، معنی اور مفہوم میں بچوں فرق ہوتا ہے۔ معنی ایک لفظ میں ہم بتا سکتے ہیں، مفہوم اس کی تھوڑی سی اسے ایکسپلین کر کے بتانا پڑتا ہے۔ اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی اقسام جان سکیں گے، شرک کا مطلب جان سکیں گے، شرک کسے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جیسے بچوں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم واقفیت حاصل کر رہے ہیں۔ شرک کی اقسام بھی اس میں شامل ہوں گی۔ تو چلیے ریڈنگ کرتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی۔ اچھا بچوں، یہاں ایک چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ یہاں اکثر آپ نے بہت چھوٹی کلاسز میں سے بھی پڑھا ہوگا، ابھی 4-5 میں بھی یہی ہے کہ عقیدہ توحید کے لغوی معنی کیا ہے۔ کسی چیز کے بھی اسلامیات میں یہ کوسچن آتا رہتا ہے کہ لغوی معنی کسے کہتے ہیں۔ تو بچوں لغوی معنی اسے کہتے ہیں جو ایک لفظ لغت میں پایا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں ڈکشنری ہے تو اردو کی جو ڈکشنری ہے اسے ہم لغت کہتے ہیں، اس میں جو معنی پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لغوی معنی۔ دیکھیں جیسے ہے کہ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور ایک جاننا کے ہیں، یکتا جاننا یعنی ایک جاننا کے ہیں۔ اب ہم کسی کو بھی ایک مان سکتے ہیں، ایک جان سکتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں سپوز اب کسی کی بات میں آپ کو یہاں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ آپ کہتے ہو کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ بہت اچھا ہے، مائی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ایک ہی ہے، اس طرح کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے لغوی معنی اس کا، لغت میں اس کا معنی ہے۔ لیکن یہاں آپ اپنے دوست کی بات کر رہے ہو۔ اب شریعت کی جو اصطلاح ہے، شریعت میں، شریعت یعنی اسلام کے نقطہ نظر میں توحید کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور تمام اس کے جملہ و صاف و کمالات کا مطلب ہے کہ اس کے مکمل جو اس میں صفتیں ہیں اور جو معجزات وہ کر سکتا ہے ان کو بھی ایک ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ان تمام چیزوں کو بے مثال ماننا کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ان سب تقاضوں کے مطابق اس پر عمل کرنا، یعنی کہ ایک ماننا، دل سے تو ماننا لیکن ان پر عمل کرنا بھی توحید کہلاتا ہے۔ اس کو ہم بالکل سادہ سے طریقے سے اس کی وضاحت کریں گے کہ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا کے، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ بچوں میں نے اس کے کوسچن آنسر لکھے ہیں، ابھی ریڈنگ کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ بچوں یہ ریڈنگ تو آپ کر ہی سکتے ہو، اس کو جو ایکسپلین کرنے والی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہے اگلا پوائنٹ جو عقیدہ توحید کی اہمیت۔ عقیدہ توحید یعنی ہم ایک مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، پھر اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر کیوں اتنا زور دیا گیا ہے۔ دیکھیں اس پر زور اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانیں، کسی اور کو بھی ساتھ اللہ بنا لیں، کسی اور پر بھی اتنا ہی یقین کریں، یا ہم یہ کہیں کہ ہم جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اگر ایسے کیا ہے تو ان کا بھی ایک ہے، کوئی بابا جی ہیں تو وہ بھی ایسے کر سکتے ہیں، اگر ہم ایسے کہیں گے تو ہم شرک کر رہے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شرک سے بچائے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی سورۃ اخلاص میں عقیدہ توحید ہی بیان کیا گیا ہے،
बार बार कहा गया कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। ये देखिए यहाँ भी आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा है और ना कोई इसके बराबर है। इसी ये अकीदा तौहीद है कि अल्लाह को इस तरह एक माना जाए। फिर अकीदा तौहीद को तमाम उमूर दीन पर अवलियत और हासिल है, यानी सबसे अहम, सबसे अव्वल दर्जा अकीदा तौहीद का है। बच्चों, इस्लाम में जब तक हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह ताला को एक नहीं मानेंगे, हम मुसलमान नहीं कहला सकते। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है। सबसे पहले कलमा, और यानी अल्लाह ताला को एक मानना। जैसे आपको कलमे का भी मतलब पता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम पहला हिस्सा जो कलमे का ना, उस पर जब तक हम यकीन नहीं करेंगे या उसको दिल से नहीं मानेंगे तो मुसलमान नहीं हो सकते। इसके बाद अगला मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। अकीदा तौहीद की इकसाम भी हैं। अगर हम तौहीद यानी अल्लाह को एक मानते हैं तो उसकी किस्में हैं। अल्लाह ताला को की रबूबियत है कि अल्लाह ताला को रब माना जाए, और रब कहते हैं कि पालने वाले को, वही हर चीज़ का खालिक मालिक है और राज़िक भी है। फिर इसके बाद इसके साथ ही कुछ अहादीस है, उनका तर्जमा भी है कि अल्लाह ताला ने ही पैदा फरमाया। सॉरी, अहादीस नहीं है बच्चों, ये कुरान मजीद के जो आयात हैं उनका तर्जमा है कि अल्लाह ताला ने ही तुम्हें पैदा फरमाया, वही रिज़्क अता करता है, वो मौत देता है फिर ज़िंदा फरमाएगा। और अगर तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है, कोई काम कर सकता है, क्या है कोई ऐसा? यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई दफ़ा इस चीज़ को बार-बार कहा है और फिर पूछा भी है कि क्या कोई ऐसा है कि जो ये काम कर सकता है? कोई ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला रब है, रब का मतलब है पालने वाला। यहाँ आपने बच्चों इस चीज़ को, इस टॉपिक को आपने ज़हन में रखना है कि जब हमने इस टॉपिक के बारे में लिखना है तौहीद रबूबियत, तब हमने ये लिखना है कि अल्लाह पैदा करने वाला है, खालिक मालिक और राज़िक है। और इस हदीस का तर्जुमा। इसके बाद है तौहीद अलूहियत। उलूहियत का मतलब है कि इस बात पर भी ईमान लाया जाए कि अल्लाह ताला इबादत के लायक है। अब पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो रिज़्क देता है, मालिक खालिक है, जैसे रबूबियत में वो रब है। और दूसरे में हम पढ़ रहे हैं कि वो सिर्फ रब ही नहीं है, वो इबादत के भी लायक है, उसकी इबादत भी की जाए और इसकी इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए, और पूरी ज़िंदगी जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उस तरह गुजारी जाए। इसके बाद बच्चों तीसरा टॉपिक है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। पहले तो आपने इन तीनों के नाम अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखने हैं, उनको याद करना है। तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। इसमें आपने ये याद रखना है, जैसे अस्मा का मतलब होता है नाम और सिफ़ात का मतलब होता है खूबियाँ। तौहीद अल्लाह का एक माना। तो यहाँ जब आपको मीनिंग का पता चल जाएगा तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सिर्फ नाम याद रख के ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि अल्लाह ताला को ना सिर्फ एक मानना, बल्कि उसका अपना ईमान इस चीज़ पर भी रखना कि जैसे उसके नाम हैं वैसी ही उसकी सिफ़ात हैं। जैसे बच्चों उसके नाम है, हमने लास्ट किसी चैप्टर में भी पढ़ा है कि अल्लाह ताला का एक नाम है अस्सलाम, एक है उसका नाम खालिक या खालिको या मालिको या रहमान। तो हम जब उसके नाम पढ़ेंगे तो हमारा एतकाद, हमारा ईमान ये भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने नामों के मुताबिक है। ये नहीं कि वो सिर्फ़ उसके नाम हैं, वो अगर अकेला भी है, वो अपने नामों के मुताबिक, वो सलाम है, तो वो सलामती अता करता है, वो खालिक है, वो पैदा करता है। अगर उसका नाम जो रब है, तो रब पालने वाला है। इस तरह अभी मैंने जो आपके साथ आंसर शेयर करूँगी, ज़रा ईज़ी लिखा हुआ है। जिस तरह बच्चों हमने पढ़ा तौहीद की इकसाम के बारे में, इस तरह है शिर्क की इकसाम। शिर्क की भी 3 किस्में हैं। शिर्क कहते हैं किसी को दूसरे के साथ शरीक करना। जैसे इसकी लग़वी मानी फिर मैं आपसे कहने लगी हूँ कि वही लुग़त के में इसके मानी होते हैं हिस्सादार के। शरीक का मतलब होता है हिस्सादार। जैसे किसी के ने कोई कारोबार किया और उसको शरीक कर लिया, वो उसका हिस्सादार हुआ। किसी ने कोई कहीं गया है, खाना खा रहा है, तो उसने किसी को शरीक कर लिया, वो उसका हिस्सादार बन गया। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में यानी दीन इस्लाम में शिर्क उसे कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ किसी को हिस्सादार ठहराना। जैसा अल्लाह है वैसा ही कोई और है, नौज़ुबिल्लाह। इस तरह का गुमान रखना, दिल में ख़्याल लाना,
या इस बात पर यकीन भी रखना कि अगर कोई काम हम बार-बार अल्लाह ताला से कह रहे हैं, तो वो किसी और पर भी ये यकीन रखना कि हमारा काम वो भी कर सकता है, किसी और के बारे में सेम अल्लाह ताला की सिफ़ात की तरह सोचना। इसके बाद है बच्चों अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करना और अलूहियत में शिर्क और सिफ़ात में शिर्क। अब ज़ात में शिर्क वही है कि अल्लाह ताला एक है, उस जैसा कोई नहीं। किसी और को अल्लाह की तरह मानना या अल्लाह ताला की कोई बेटी या बेटा बना देना या अल्लाह ताला की ज़ात में कोई और शरीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी ज़ात में शिरकत है। और इसके बाद है अलूहियत में शिरकत। अलूहियत जैसे हमने पढ़ा था कि इबादत को कहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करने को। तो अल्लाह ताला की इबादत करते हुए उसमें किसी और को भी शरीक कर लेना, किसी और की भी इबादत कर लेना या किसी और की भी अज़मत को उस तरह बयान करना, जैसे अल्लाह की बड़ाई को बयान करते हुए किसी और की बड़ाई बयान कर देनी। याद रखिए बच्चों कि अम्बिया कराम जो हैं वो भी अल्लाह ताला के बाद आते हैं, हम अल्लाह ताला के बराबर उनको भी नहीं ठहरा सकते। फिर इसके बाद है सिफ़ात में शिर्क। तो बच्चों जब सिफ़ात अल्लाह ताला की बयान करेंगे कि अल्लाह ताला जो है बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, मेहरबान है और फिर वो गफ़ार है। इस तरह की अल्लाह ताला की ज़ात की जब बात करेंगे, तो उसमें अगर किसी को हम शरीक ठहरा दें कि वो फ़लाँ शख़्स जो है वो भी बड़ा रहमान है। इस तरह की अल्लाह ताला की सिफ़ात में हम किसी को शरीक नहीं कर सकते कि उसने भी अल्लाह की तरह ही के काम किए हैं। नाउज़ुबिल्लाह हम इस तरह भी नहीं कह सकते। इस तरह ये तीनों जो हैं ये शिर्क की इक़साम हैं और शिर्क के असरात बहुत बुरे होते हैं। जो इंसान शिर्क कर लेता है वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। अब अगर यहाँ शिर्क के असरात के बारे में तो मैंने आपको वैसे ही थोड़ा-सा बताऊँगी कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करता। तो अल्लाह ताला इस गुनाह से बचाए हम सबको। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अकीदा तौहीद के असरात। जैसे हमने पहले पढ़ा है अकीदा तौहीद, उसके असरात क्या होंगे? अकीदा तौहीद को मानने वाला शख्स गैरतमंद और बहादुर होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि तमाम कुव्वतों का मालिक अल्लाह ताला है। उसका अकीदा है ना, वो ईमान रखता है अल्लाह ताला पे। बच्चों अकीदा का मतलब ईमान ही होता है और फिर तौहीद यानी अल्लाह ही एक है। अब अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि मैं आपकी शायरग से भी करीब हूँ और जो मैं चाहता हूँ वही होता है। जैसे कि मैं किसी को अगर मौत देना चाहता हूँ, तो उसका वक़्त मुकर्रर है तो वो कोई टाल नहीं सकता और अगर चाहे सारी दुनिया भी आपको मारने पर तुली है, तो अगर अल्लाह ताला बचाने वाला है, तो अल्लाह ताला ने बचा लेना है। यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात जब एक बंदे के दिल में इतना ईमान मज़बूत हो जाए, तो वो बहादुर हो जाता है और फिर उसमें आजिज़ी और इनकिसारी भी आ जाती है। वो गरूर नहीं करता, वो समझता है कि मैं तो कोई चीज़ हूँ ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो अल्लाह ताला ने किया है, क्योंकि वो अल्लाह ताला को मान चुका है दिल से। और फिर अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला शख्स तंग नज़र नहीं होता, यानी वो सिर्फ़ ये नहीं सोचता कि मेरा ही फ़ायदा हो, मैं ही ये काम करूँ, मेरे ही पास बहुत दौलत हो, मेरे पास सारी आसाइशें हों। वो दूसरों के लिए भी भलाई सोचता है। और फिर अकीदा तौहीद इंसान में सब्र और कनायत पैदा करता है, यानी अल्लाह ताला ने जो उसे दिया है उस पर सब्र शुक्र करता है और अल्लाह ताला पर तवक्ल जैसी सिफ़ात तो उसके अंदर लाज़मी होती हैं कि वो हर चीज़ का यकीन अल्लाह पर रखता है कि सवाए अल्लाह की ज़ात के किसी और को ये इख्तियार नहीं। इवन कि अगर पत्ता भी कोई दरख्त से हिलता है, तो वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता, उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं गिरता। हम लोगों ने जहाँ जाना है, अगर हम हमारे कदम चल रहे हैं, वहाँ लिखे हुए हैं तो हम वहाँ पहुँचते हैं, अगर नहीं तो किसी की ज़रूरत नहीं कि हमें उस जगह पर लेके जाए। और अकीदा तौहीद रखने वाला बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है, परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे अल्लाह पर मुकम्मल यकीन है कि इसमें भी कोई हिकमत छुपी हुई है। अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला इंसान पुरुम्मीद रहता है और वो पुरसकून और इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुज़ारता है। बच्चों जिस इंसान का अकीदा मज़बूत होता है, उसको किसी का ना डर खौफ होता है और ना ही उसे नुकसान की परवाह होती है और नींद भी उसे अच्छी आती है। तो उम्मीद है इस चैप्टर को आप समझ गए होंगे, इसकी थोड़ी-सी जो मैंने वज़ाहत की है। बच्चों नेक्स्ट मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपसे शेयर करूँगी। इसको आप 2-3 दफ़ा पढ़िए। शिर्क और इसकी इक़साम अलग से 3 हैं और तौहीद और इसकी इक़साम अलग से 3 हैं, इन दोनों को मिक्स ना कीजिए।
अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।